and the efforts have been done by Mukund Chauhan, their team, and from my side, VMP Infotech, VMP Investment is also working hard to spread the awareness that in this tough time, how we can avoid and how we can engage ourselves in a productive things which can be done. So yesterday we had a disruption is key to success, and Mukund sir has asked certain questions. So first of all, he will be taking us through that questions, and he has also put one question, very important question was that action which is difficult but result oriented could be done to transform your business, that you need to find out. So all of that he will be continuing. Today is a leadership multiplier, and Absolutely. uh, let me see, today new faces are coming. So every day brief introduction तो देना ही पड़ेगा हमें सर का, क्योंकि नए Yes, बंदे yes, yes. आएंगे, उनके पास बैकग्राउंड नहीं है कि इनके बारे में मैं क्या बताऊं कि मुकुंद चौहान हैज स्टार्टेड एज अ सेल्स पर्सनल, यू नो, एट द कॉल सेंटर. तो कॉल सेंटर में आज जो काम Yes. करता है वो कल को ट्रेनर बन सकता है. सो दैट इज फर्स्ट इंस्पिरेशन. सेकंड इज दैट आप कहीं पे भी हो, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी एक मतलब गोल, सी एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू हैव अ विजन कि आफ्टर 5 years वेयर आई लुक माई सेल्फ. सो लीडर्स लोग वही बोलते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है, खाली आपके पास विजन होना चाहिए या एक फोकस होना चाहिए. आप 4 चीज करते रहोगे पर सब आधी आधी करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, after 5 years from now on, where I want to see myself, and to do that what I should do. 5 साल काफी लंबा पीरियड है, तो आप 1 साल का बना लो. जो भी आपको लगता है आज मैं जो हूँ वहां से एक 3 महीने के बाद मुझे अपने आप को कहाँ लेके जाना है, 6 महीने के बाद. सो ऑल दैट स्टार्ट थिंकिंग प्रोसेस, देन वर्किंग एक्शन. बिकॉज जितना भी आप पढ़ो करो, आज आज लेक्चर सुनो, उसमें से हम 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इट इज जस्ट बस जैसे हम टीवी देखने गए या पिक्चर देखने गए, ड्रामा देखा, अच्छा देखा, आ गए, या ઓલું ગુજરાતીમાં કે શમશાન વેરાઈ ગયો કે ત્યારે એમ લાગે કે આ બધું સંસાર નશ્વર છે. when you come back from these crematorium and then again you go back to the normal. So something which really shakes our thought. So after working for what do you call call center, then he also ventured into multi-level marketing. There also he was a leadership trainer, mentorship, and then gradually he realized that okay, whatever I have learned on a span of my journey, let's share with the other entrepreneurs. From SME, let us move them to a one step ahead. सी ओवरनाइट कोई भी चेंज नहीं आता है लाइफ में. चेंज अगर हम लाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट जर्नी है. कंसिस्टेंसी ऑलवेज लीड्स टू द रिजल्ट. बट कंसिस्टेंसी किस चीज की कर रहे हो, बुराई की कर रहे हो, अच्छाई की कर रहे हो, कुछ डायरेक्शंस की कर रहे हो, कोई गोल लेके कर रहे हो, दैट ऑल इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में. तो उसके लिए सर्टन साइंटिफिक टेक्निक्स भी रहती है. सो इन द कमिंग सीरीज सर विल आल्सो टेक अस थ्रू द साइंटिफिक आंसर टू आवर क्वेश्चंस. Today he has also agreed that he will be there for 10 more minutes for question and answer after the session gets over. And in the meantime, people are joining. I am taking an opportunity to share my views also to the participants about him. And then in his journey of 7 years, like he started as a coach, SME experts in the year 2013. So in this span of 7 years, 5,000 lives have been transformed. 200 SME business have exponentially shown the growth. So that is what he has found the purpose in his life. We all are always asking ourselves at whatever age we are, the moment we have the learning, education, and we can say once we become adult, our target is always to find out why we are on this earth. Why? What is the purpose God has sent us? And he has found his purpose that he wants to transform the life of the other SMEs with making them growing in their business. See, at the end of the day, everybody should hard reality hai. Life में money is not everything, but money is a medium to get everything. So let's be open कि हमें बढ़ना है आगे, तो हमें पैसे भी उतने ही चाहिए बैंक में, बट सुकून वाली लाइफ चाहिए. So now let's start with the today's topic, sir, or shall we wait for a minute or two? We can start. Because those who have come in time, absolutely, I also absolutely. always believe those who have come for the timing, like 8 बजे है, we all know कि 5 minutes में introduction ये कर सकते हैं हम लोग.
So that much. Yes, sir. Yes, sir. So we have already reached to the target. 2020 स्टार्ट कर सकते हैं मुकुंद सर. आज आपका वो स्क्रीन शेयरिंग का जरा देख लेंगे सर. Yes, yes, yes. That's what I'm gonna see कैसे होता है यहाँ पे. हाँ. I'll try my best. So, yes, yeah. sir. Okay. Let's Okay. see. हाँ. आपको शायद स्पीकर व्यू भी करना पड़े तो देख लीजिए. And we welcome Yes, you yes, the second day of all should be entrepreneur, should be enthusiastic to learn. See, eagerness to learn is bringing you here. And now Mukund sir will definitely do the justice. Thank you. Welcome Mukund sir. Okay, okay. Thank you so much, MP Infotech और वंदना मैम to introduce me and take this initiative to organize my program. Thank you so much वंदना मैम कि आपने इतने efforts लिए तो लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. We had met वंदना मैम का एक सेशन हुआ था जिसमें there were like 80-70 people and I and वंदना मैम got introduced in that way. She was a like and then Zoom पे ही ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ and then बहुत अच्छे उनके वो भी स्पिरिचुअलिटी में काफी हाई है उनका लेवल एंड कहीं ना कहीं एक कनेक्शन मिल सका इसके लिए हम साथ में ये डाल रहे हैं. So thank you so much Vandana ma'am and VMP Infotech to take such an initiative to organize this for the people because alone I would not have been able to do it without your support. So thank you so much and thank you so much for very very nice introduction. कल भी दिया था आज भी दिया था आपने और मुझे लगता है जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक आपको पूरे 5 दिन देना रहेगा. So you give introduction in very nice way and ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन इतना ये सही है कि अगर आपके पास एस्पिरेशन है. मैं टेलीकॉलर था. My first job was 1,000 rupees. I'm a commerce graduate और मैंने I just from 3,000 rupees to business coach today. Telecaller selling HDFC credit card to a business coach today transforming business. So if you have any aspiration, job, your qualification, your color, which background you come from, it doesn't matter. You just need to have aspiration. तो अगर if I can, you all can. And just because मैम ने कहा yes, it's an inspiration for all the guy वो समझते हैं कि मैं जॉब पे पोजीशन पे मैं अपनी लाइफ पे कैसे ग्रो करूंगा. सिर्फ पोजीशन कोई भी छोटी नहीं होती. अगर आप उसमें हार्ड एफर्ट्स डालेंगे तो कोई भी छोटी पोजीशन को आप बड़ी बना सकते हैं. ओके सो उसी फैक्ट के साथ आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वंदना मैम प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन बिकॉज यू आर द होस्ट टुडे. So allow me to share the screen and I will see to it that video comes. I will tell Sandeep also. Let's see. Even I'm not sure today. Definitely कल हम एक वर्कआउट कर लेंगे उस पे पूरा. अगर आज नहीं हुआ तो कल तो फॉर श्योर है वंदना मैम. Okay, so today also. हाँ. Okay. Just try. You can now share your screen. Yes. Yes. Now I'm able to share the screen. Welcome Daman bhai. So friends, today it is a very very fantastic topic and it is very close to my heart. It is very very close to my heart also. अच्छा, how many are able to see now? आप कितने लोग मुझे देख सकते हैं? How many are able to see me and hear me? Please type Y. Okay, fantastic. Okay, fantastic. Today's topic is going to be very, very interesting. Please take a pen and paper, and it is going to be one of my favorite topic. Because मैं always कहता हूँ, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो please see. मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपका ये बिजनेस है और आप यहाँ पे है. सपोज आपका बिजनेस 5 स्केल पे है तो आपका लीडरशिप भी 5 पे होगा. अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को आप 7 लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको लीडरशिप भी 7 लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. So friends, the more you want to grow your business, the more you have to take your leadership too. आपको अपना लीडरशिप इंक्रीज करेंगे तो ही आपका लीडरशिप इंक्रीज करेंगे तो ही आप अपना बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे. So it is very important. 21st century is all about leadership. The day have gone. मैनिपुलेशन का जमाना गया. अभी इन्फ्लुएंस का जमाना है. अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लीड कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, यू कैन चेंज एनीथिंग. नो मैटर आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, यू आर सीए, यू आर इन बिजनेस, यू आर एनीथिंग, यू service or you have a product selling business, anything. But if you have a leadership, and without leadership it is very difficult. I would say it is impossible to grow your business. So if you want to grow and scale your business, you need to learn about leadership.
और लीडरशिप पे काम करते रहना है। पिछले 2009 से मैं लीडरशिप पे काम कर रहा हूँ, लगभग 12 साल हो चुके हैं। आज भी अपनी लीडरशिप स्टाइल पे काम कर रहा हूँ। आज भी लीडरशिप लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए भी ये कंप्लीट है। लर्निंग लीडरशिप इज अ जर्नी, इज नॉट अ डेस्टिनेशन। और कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मैंने कंप्लीट लीडरशिप सीख ली है। बट मैं आप सारे एंटरप्रेन्योर से, सेल्फ एम्प्लॉयड से, एंटरप्राइजेस से, बिजनेस ओनर से ये कहना चाहूंगा, इट इज द वन सिंगल इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू लर्न to upgrade, upscale, and to grow your business. Without this, no matter how good product you have, no matter how good service you have, no matter how good background you have, no matter how good connection you have, no matter how good team you have, but if you do not have leadership, आप drive नहीं कर पाएंगे. So it is absolutely important to a leadership. And 21st century, once again, I'm being repetitive, but let me tell you, it's all about influence. Okay? यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ what is leader. मैंने एक सिंपल शब्द में कहूँगा, leadership is an influence. इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप लोगों को इंपैक्ट कर पा रहे हैं। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप लोगों से वो करवा ले जो वो करना नहीं चाहते, लेकिन करेंगे क्योंकि वो आपके साथ है। वापस से सुनना, लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस। जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, जब आप अपनी बातें लोगों के सामने कम्युनिकेट कर पाते हैं, जब लोग वो करे जो वो करना नहीं चाहते लेकिन दिल से करेंगे क्योंकि आप खड़े हैं, तो वो उसे इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस। Friends, it is a very, very important subject, and it is a very, 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 I would say, it's a topic which बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या लीडरशिप सीखी जा सकती है। So, one of the good highlight I want to share is, yes, leadership can be learned. Leadership can be learned. अच्छा, how many of you want to develop mastery over leadership? Just do not want to learn, develop mastery over leadership. Please type Y. How many of you want to master the leadership? Not only just want to learn about it, but you want to develop, you want to master this skill, because this skills is really important. You type why. Okay, thank you so much. राम जी कह रहे हैं, श्रीकांत जी, हीरल मेहता जी, राकेश अग्रवाल जी, हितेश पंड्या जी, mastering. Okay, mastering leadership skills. Okay, wonderful, wonderful. And trust me, 21st century, it's very, very important. I have read about so many businesses. मैंने देखा है कि small even product इतना वो नहीं है, फिर भी लोग कर जाते हैं। जैसे सिंपली मैकडोनल्ड की बात मैं करता हूँ, प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है, लेकिन फिर भी उस प्रोडक्ट के साथ उन्होंने पूरे वर्ल्ड छा गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनके प्रोडक्ट में उतनी जान नहीं है। पेप्सी कोक देख लीजिए, कोक, आज कोक का कितना वैल्यू, कोक ब्रांड का इटसेल्फ कितना वैल्यू है। तो ये सारी चीजें शुरू हुई है लीडरशिप से। ये कोक में है क्या, मीठा थोड़ा है, लेकिन इसको वर्ड आप कहेंगे तो उनकी खाली पूरी प्रॉपर्टी और असेट एक साइड रख लो, कोला खाली ब्रांड एक साइड रख लो, खाली कोको कोला ब्रांड जो है नाम, वो भी $1 बिलियन का है। मतलब इट्स मोर देन 10+ $1 बिलियन। So it is how important the product is. Very simple, but someone had a leadership in the organization, the founder, the leaders who grew that. So it is absolutely important that whatever business we are in, अगर हम leadership वहाँ पे showcase करते हैं, demonstrate करते हैं, then we can grow to the next level. And trust me, it has always been my favorite topic. I teach entrepreneurs that they must develop this skill. It is an ongoing process. It is an absolutely ongoing process जो आप करना है. Definitely, I will suggest 1 or 2 books at the end of the session. So let us begin the journey that leadership is an influence. Okay, so let us begin our journey. So today I'm going to talk about 6 characteristics of the leader. 6 ऐसी characteristics जो leader में होनी चाहिए, जो leader में पाई जाती है. I have read almost around 500 books, many workshops, training I attended, and after my observation, I came to conclusion that leader must have these 6 characteristics. So I'm going to talk about this characteristic in the brief. So let us get ready. Let me welcome the first characteristics of a leadership I'm going to share about is that leaders are dealers in hope. The number one thing the leader must have, leaders are dealers in hope. Leader are 24/7, 365 days. Leader constant hope देते रहते हैं अपनी टीम को, लोगों को, फ्रेंड्स को, वेंडर को, पार्टी को. लीडर ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट द होप. लीडर एक ऐसे लोग होते हैं जो ऑलवेज होप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. हिरल मेहता जी अग्री कर रहे हैं, थैंक यू मैम. यस, लीडर ऑलवेज होप करते हैं, होप देते रहते हैं 24/7 into 365. और कितना भी बड़ा फेलियर आ जाए, कितना भी बड़ा फेलियर आ जाए ऑर्गेनाइजेशन में, कितने भी बड़े चैलेंजेस आ जाए,
कितनी भी बड़ी चीजें आ जाए। नारायण मूर्ति ने जब इन्फोसिस स्टार्ट किया था 7 लोगों ने मिलकर, तो कुछ टाइम के बाद स्टिल कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में नहीं थी, लेकिन नारायण मूर्ति ने होप दी और बाकी 6 लोग भी खड़े रहे, तो आज वो इन्फोसिस इतना बड़ा हो गया। मैंने कल ही शेयर किया था कि उनके एक पार्टनर के 6000 घर है यूएस में। तो एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो लीडर होता है, जो ड्राइवर होता है, उसको कंटिन्यूस होप प्रोवाइड करना रहता है, उनको कंटिन्यूस होप प्रोवाइड करना रहता है। लीडर्स का काम है होप देना। नो मैटर अगर लॉस हो जाता है, पैसे नहीं आते या बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, so that is the time leader must give the hope to their team, to the people who are connected with the project. So it is very important that we become a hope giver, because याद रखिए सिंपल है, आपको किस तरह की बेंचमार्क का लीडर बनना है। आज मैं कुछ बेंचमार्क सेट करने वाला हूं। यू कैन हैव द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज दैट आपके प्रेजेंस से, याद रखो आपकी प्रेजेंस से आपकी टीम अगर इंस्पायर होती है, मोटिवेट होती है, स्ट्रेच करने के लिए रेडी करती है, ज्यादा काम करने के लिए रेडी करती है, आपकी प्रेजेंस से अगर लोग स्ट्रेच करते हैं तो समझ जाना यू आर लीडर्स इन होप। आप ऑलवेज होप दे रहे हैं, तो आपको ऑलवेज कंटिन्यूस होप देते रहना है। आज अभी लॉकडाउन के समय में कंटिन्यूसली अपनी टीम को प्रोवाइड कीजिए, अपने को प्रोवाइड कीजिए होप, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कीजिए होप, अपने फैमिली को प्रोवाइड कीजिए होप, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं आपके स्टेक होल्डर उनको प्रोवाइड कीजिए होप। Hope giving is a very important thing. Hope giving is a very important thing. So leader always hope देते रहते हैं। मैंने नॉर्मली एसएमई के केस में देखा है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर उनके केस में देखा है, जब भी फेलियर है तो काफी डिजेक्टेड। देखो सामान्य है, मेरे लाइफ में भी अगर फेलियर आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, डिप्रेशन होगा, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, बट इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स कि मैं ऑलवेज अपनी टीम को ऐसे टाइम पे, मेरे और आप हम सब सेम है, हम सबके लिए जरूरी है। तो कितना भी बड़ा फेलियर अगर ऑर्गेनाइजेशन आता है तो आपको कंटिन्यूस होप देना है, आपको होपलेस नहीं हो जाना है। बहुत सारी बार मैंने ऐसा देखा कि ओनर ही बोलता है कि अभी क्या आगे होएगा पता है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप अपनी टीम में फियर डालते हैं तो आपकी टीम, आप सबसे बड़े वहां पे लॉस हो गए। तो अंडरस्टैंड, नेवर शेयर योर फियर विथ योर टीम। वंस अगेन आई विल रिपीट, नेवर शेयर योर फियर विथ योर टीम। चैलेंज शेयर कर सकते हैं, फियर शेयर नहीं करना है। चैलेंज का मतलब अच्छा ये काम हो नहीं रहा है, इस तरह से क्लाइंट आ नहीं रहे, इस तरह से हो नहीं रहा है, हम कैसे कर सकते हैं। चैलेंज शेयर करना है पर फियर कभी शेयर नहीं करना है, बिकॉज व्हेन यू आर शेयरिंग फियर विथ योर टीम यू आर द फर्स्ट पर्सन टू लूज। कैसे उसके दिमाग में फियर आ जाएगा तो होप नहीं रहेगी, स्पिरिट नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग स्पिरिट के साथ काम करें तो ऑलवेज आपकी टीम को मोटिवेट, गाइड और इंस्पायर करते रहना पड़ेगा। श्रीकांत जी कह रहे हैं ऑलवेज मोटिवेट, गाइड और इंस्पायर करते रहना पड़ेगा। मोटिवेशन, गाइडेंस और इंस्पिरेशन ऑलवेज। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे ओनर कहते हैं कि सर मैं थक जाता हूँ, कितना बताने का, कितना बोलने का, कितना समझाने का, कितना मोटिवेट करने का, कितना गाइड करने का, कितना इंस्पायर करने का। फ्रेंड, एज अ लीडर आप अफोर्ड नहीं कर सकते थकने का। सी एज अ लीडर, you are a leader of your organization, your enterprise, your business. You cannot afford to get tired. You cannot say that अभी मैं कितना करूं, अभी मैं कितना करूं। ये लीडर की नहीं है कि मैं कितना करूं। लीडर को तब तक करना है जब तक हो न जाए। लीडर वो व्यक्ति होता है जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेता है और सब जिम्मेदारी लेता है अपने टीम की, अपने क्लाइंट की, अपने स्टेक होल्डर की, अपने फैमिली की, अपने सोसाइटी की, तो अपने देश की। लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है। लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है। आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आपको ये लैंग्वेज कभी यूज नहीं करनी कि मैं कितना करूं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट टायर्ड। ऑलवेज इंस्पायर एंड मोटिवेट योर टीम and give them a hope. And for that you need to continuously inspire your team, and for that you need to have a hope first. So in order to be hopeful, you need to read books, you need to watch videos, you need to take continuous learning कि आप में वो hope बरकरार रहे। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, the more hope you give, the more hopeful you become. जितनी आप hope देते हैं उतने आप hopeful बनते हैं। कुछ लोग जितना आप इंस्पायर करते हैं उतना आप स्पिरिट में रहते हैं, जितना आप लोगों को मोटिवेट करते हैं उतना आप मोटिवेट होते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप अपने आपकी टीम को इंस्पायर किया तो आप भी इंस्पायर हो गए? हैव यू ऑब्जर्व दैट काइंड ऑफ थिंग कि आपने मोटिवेट किया, टीम को इंस्पायर किया और आप भी बाद में चार्ज अप हो गए आपकी टीम को, लोगों को या किसी भी व्यक्ति को इंस्पायर या मोटिवेट करने के बाद? इफ योर आंसर इज यस, प्लीज टाइप व्हाई। Absolutely. So when you inspire anybody, you get also inspired. आप किसी को इंस्पायर करते हैं तो आप इंस्पायर होते भी हैं। The more hope you give, the more hopeful you become. फिर आप एक पावर हाउस बन जाते हैं जहां से होप मिलती रहती है। तो दूसरा ये होता है कि आप एक पावर हाउस बन जाते हो जो कंटिन्यूसली होप प्रोवाइड कर रहा है।
तो डेफिनेटली पीपल लुक अप टू यू। तो अगर आपको कभी इंस्पायर्ड होना है, मोटिवेट होना है, व्हेन यू आर गिविंग होप टू योर टीम, आप भी चार्ज हो जाएंगे। तो मेक श्योर कंटिन्यूअसली यू आर हेल्पिंग योर टीम टू, आप अपनी टीम को होप देते जा रहे हैं, होप देते जा रहे हैं। वंस यू सी पीपल फॉलोइंग दिस बिगिन, एब्सोल्युटली जब आप होप देंगे तो ही लोग आपको फॉलो करेंगे। अच्छा, होप देने से क्या होता है? होप देने से लोग स्पिरिट में आते, कहते हैं इंस्पायर्ड। अगर हम इंस्पायर वर्ड को तोड़ते हैं तो इन आई इन यहाँ पे हो गया, और स्पायर SPIRE, वो जो स्पायर है वो स्पिरिट है। इन स्पिरिट से वर्ड बना है इंस्पायर। व्हेन यू इंस्पायर एनीबॉडी दे गेट इन स्पिरिट, और जब हम स्पिरिट में होते हैं हम बहुत अच्छा काम करते हैं। क्रिएटिव, वी क्रिएट एक्सीलेंस, we do marvelous job, we do job with the passion when we are in spirit। तो इंस्पायर का मतलब होता है इन स्पिरिट, और जब आप होप देते हैं तो आपकी टीम जो स्पिरिट में आ जाती है। और मेरा ये मानना है, मेरा ये ठोस मानना है कि स्पिरिट में लोग एकदम ऑसम काम करते हैं। स्पिरिट में लोग सीमाएं ब्रेक करते हैं, स्पिरिट में लोग तोड़ते हैं, स्पिरिट में लोग फॉल्स स्टोरी तोड़ते हैं, स्पिरिट में लोग कंफर्ट के बाहर जाते हैं, स्पिरिट में लोग डिसीजन लेते हैं, और स्पिरिट में लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं और अपना बेस्ट टैलेंट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हाउ मेनी एग्री विथ मी? So spirit is a very, very important thing. Spirit is followed by the hope in your team, and you need to constantly have an atmosphere and a culture. Not only you, leaders are dealers in hope. आपके नीचे कोई CEO है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स वाला है, टीम लीडर आपके ठीक नीचे है, उसका भी नेचर वैसा ही होना चाहिए। अगर नहीं है, प्लीज ट्रेन हिम टू बी अ होप गिवर। It is absolutely important and it is absolutely critical. So number one characteristic is to leader. Leaders are always dealer in. Let's look at the second quality of characteristic leader FFF. Absolutely my dear friends, leader ने ये FFF को clear kill किया होता है। Now what does that mean? FFF इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है fear of failure। लीडर ने fear of failure kill क्या होता है? देखो सिंपली, अगर लीडर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको डर नहीं लगता। लीडर फाइट इन स्पाइट ऑफ फियर, और उसको बोलते हैं करेज। तो लीडर ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट द करेज। लीडर हैव किल्ड द FFF। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू किल योर ओन फियर, बिकॉज आपके करेजियस एक्शन नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं करेगी। मेरे साथ भी ऐसा ही है। इफ आई डू नॉट टेक एक्शन, करेजियस एक्शन, देन माय ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट ग्रो। सो इट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू किल FFF। अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, SME, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, या ये थिंकिंग होती है कि एक डर बहुत सता रहता है, फियर ऑफ फेलियर का। एंड यू नो व्हाट, फेलियर डू नॉट अलाउ यू टू टेक एक्शन। कितने लोग अग्री करते हैं कि व्हेन वी आर ओवर पावर्ड बाय फियर, और हम वी डू नॉट टेक एक्शन, एंड फियर इज व्हाट? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग अग्री कर रहे हैं, राम जी, अश्विनी मैम, ओके गुड, कि फियर हमें, फियर का जो चीज है वो हमें एक्शन लेने नहीं देता। यस, दमन जी कह रहे हैं, दमन पुरुष जो कह रहे हैं कि मैं आज आपको फियर के बारे में कुछ चीजें फैंटास्टिकली शेयर करना चाहता हूं। हिरल मैम कह रहे हैं, कैलाश जी, रोहित मुंदाना कह रहे हैं, फियर आपको एक्शन लेने नहीं देगा और फियर आपको स्मॉल रहने देगा। नंबर वन थिंग व्हाट आई रियलाइज आफ्टर रीडिंग, दिलीप साहू जी कह रहे हैं, आफ्टर रीडिंग ऑल द साइकोलॉजी अबाउट, मैं एक चीज पे आया हूं कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम यू थिंक विच नेवर हैपेंस, 90% जो आप फियर सोच रहे होते हैं ना, वो रियलिटी में होते ही नहीं है। हाउ मेनी एग्री कि बहुत सारे फियर्स तो हमारे खुद के बनाए होते हैं, दैट्स ऑल आवर ओन स्टोरी। 90% डज नॉट कम इनटू रियलिटी एंड 10% विच कम इन द रियलिटी। अच्छा, आप बोलते हो नहीं सर रियलिटी में, यस आई एग्री, रियलिटी में आते हैं, लेकिन जो 10% रियलिटी में आते हैं ना, वो आपको मजबूत बना के चले जाते हैं। दैट मेक्स यू वेरी स्ट्रॉन्गर। Are you getting my point? See, there are two kind of people in life. One who go through problem and one who grow through the problem. दो टाइप के लोग होते हैं लाइफ में, one who go through the problem and one who grow through the problem. Now, which category are you in? Understand, 90% fear is our just story. कि मैं ये करूंगा तो लॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो टीम छोड़ के चली जाएगी, तो लोग मेरे को क्या बोलेंगे। अगर मैं अभी सपोज अंधेरी लोकल वाले में रहता हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया, तो मैं कहीं, मेरे को वसई जाना पड़ेगा या उससे पालघर जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे फियर होते हैं, बहुत सारे देर आर डिफरेंट काइंड के फियर होते हैं। सबसे बड़ा फियर क्या होता है पता है? व्हाट पीपल विल से। यस, if my audio is not clear, please type, because I am today not, yes, I'm definitely using my body language, but I'm not that shaking, so my voice is very clear. If you are all able to hear my voice clearly, please type Y. If you are able to hear my voice, please type Y. Okay, because that's the reason I'm not
body language in a such a way, because audio shakes, then you might quality might not come down to you. Okay, thank you so much all of you for replying. I am so much बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत रिप्लाई कर रहे हैं. You are energetic, you are throwing the answers, and I love you all because you are all energetic, and because of all of you guys today, now it's 8:25, but I'm as energetic as I was in morning. Okay, so leaders have killed the fear of failure. Number one, सबसे बड़ा failure होता है कि क्या करेंगे, एक डर रहता है, fear रहता है कि what people will say. यही हमको एक्शन नहीं लेने देता है. The same thing it is not allowing कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे ना वो छोड़ना पड़ेगा. जितने भी लीडर्स टॉप पे आते हैं, जितने भी बिलियनर हो या सक्सेसफुल पीपल हो या पीक परफॉर्मर हो या जिन लोगों ने इंपैक्ट डाला हो वर्ल्ड में, वो सबने छोड़ा है कि लोग क्या कहेंगे. लोग आपके बारे में अच्छा करोगे तो भी बातें करेंगे, बुरोगे तो भी बातें करेंगे. भागवत गीता में भी कहा गया है कि प्रशंसा में भी अंदर से हिलने का नहीं, और कोई टीका करे तो भी अंदर से हिलने का नहीं. ऐसे काम और कंपोज हमको बनना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लीडर्स के पास वो होता है. आज अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी के, अभी मैं जस्ट ओयो के बारे में पढ़ रहा था, मैं जस्ट बायस नहीं हो रहा हूँ पर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. मैं ओयो का इंसिडेंट फेसबुक पे पढ़ रहा था, तो सब उनको बोल रहे हैं ओयो इज वर्स्ट, ओयो इज दैट, ओयो इज दैट, ओयो इज दैट. लेकिन ये कहानी का एक किस्सा ये भी है कि एक 26 साल का लड़का 70 करोड़ प्लस की कंपनी खड़ी करता है. तो हमें उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए. तो लोग जब वो अच्छा कर रहे थे तो लोग इंटरव्यू ले रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बहुत सारी चीजें कहते. बट एट द सेम टाइम नाउ ही इज लेइंग ऑफ द पीपल, तो लोग बुरा भी बोल रहे हैं, बट वो अपने मिशन पे है. ही इज ऑन मिशन. सो अंडरस्टैंड, जब आप कुछ बड़ा करने के लिए जाएंगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, वही सेम लोग तालियां भी बजाएंगे, दोनों आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. एंड दैट्स द रीजन यू नीड टू बी सो काम, kill the fear of failure. आज अगर मैं काफी रिचर्ड ब्रैंसन से काफी इंस्पायर हूं. हाउ मेनी नो रिचर्ड ब्रैंसन, वर्जिन एयरवेज के ओनर? आई एम सो मच, आई एम very much inspired by Richard Branson. I would all suggest you must read Richard Branson autobiography. It's a wonderful and it's very classic, and you will get a lot of knowledge from that autobiography, that actually how to live the life. How many know Richard Branson? If you know Richard Branson, I'm sure it's a very popular name in the world. Virgin Airways owner Richard Branson जो है, रिचर्ड ब्रैंसन की एक कंपनी हुआ करती थी, वर्जिन रिकॉर्डिंग. यस, अश्विनी मैम बोल रहे हैं, जानते हैं? यस, डेफिनेटली द वेल नोन नेम, वर्जिन एयरवेज ओनर. और वर्जिन के अंडर जो है रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन कंपनी के अंदर और कंपनी है उनकी, कोई पोर्टफोलियो में है, कोई इवेंट मैनेजमेंट में. देयर आर सो मेनी कंपनी. सो लीडर हैव किल्ड द एफएफएफ. उसमें एक मैं आज बताता हूँ कि रिचर्ड ब्रैंसन की एक वर्जिन रिकॉर्डिंग कंपनी थी, एक वर्जिन रिकॉर्डिंग कंपनी थी, और वर्जिन रिकॉर्डिंग कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी. इट वाज गोइंग वेरी गुड, इट वाज गोइंग वेरी फाइन. और ऑल ऑफ सडन रिचर्ड ब्रैंसन को ऐसा पैशन आया, कि आई वांट टू गेट इनटू एयरवेज, कि मुझे एयरवेज में जाना है. और जब एयरवेज में जाने का उन्होंने नक्की किया, एयरवेज चालू की, तो क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग वर्जिन अच्छा चल रहा था, उसमें से बहुत सारा पैसा उन्हें निकालना पड़ता था एयरवेज में डालने के लिए. एंड यू नो एयरवेज इज अ वेरी कॉस्टली, उसमें बहुत एविएशन इंडस्ट्री में बहुत पैसा लगता है. तो सारा वर्जिन रिकॉर्डिंग का पैसा निकाल के इसमें डाल रहे थे, 3 साल तक वो कुछ भी प्रॉफिट वगैरह नहीं आ रहा था. सिर्फ रिचर्ड ब्रैंसन कंटिन्यूअस पैसा डाले जा रहे थे. तभी बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग उनके फैमिली मेंबर ने, कहा कि बंद कर दो, वर्जिन एयरवेज बंद कर दो, कुछ काम में नहीं आने वाला है. आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में से पैसा निकाल के जो अच्छी कंपनी चल रही है आप इसमें डाल रहे हैं. बिकॉज रिचर्ड ब्रैंसन फ्यूचर देख सकते थे, उनकी गट फीलिंग थी. उन्होंने ना अपनी फैमिली मेंबर का सुना, ना अपने फ्रेंड्स का सुना, ना लोगों का सुना. तो वर्जिन एयरवेज को बनाने के डिसीजन पे टिके रहे, उसमें पैसा पंपिंग करते रहे. फाइनली इतने पिस्ड ऑफ हो गए वो उनकी टीम से, पार्टनर से वर्जिन रिकॉर्डिंग के, कि उन्होंने वर्जिन रिकॉर्डिंग बेच दी. और जो भी उनको हाथ में मिला, जो भी उनके हाथ में जो शेयर्स था, जो उनको मिला, स्टेक होल्डर, उनके इक्विटी, जो पैसा मिला, वो पैसा उन्होंने. रिचर्ड ब्रैंसन एक टाइम बैंक तरफ हो सकते, अगर ये फेल हुआ गया होता, सारा पैसा उनके एक विजन पे लगा दिया, एयरवेज को. एंड ही नॉट ओनली सक्सेस, वो एयरवे में बहुत सक्सेस हुए. याद रखो, वो आदमी जब एयरवेज में आए थे तो रिचर्ड ब्रैंसन, जिनकी कंपनी वर्जिन एयरवेज है, उनके पास एक प्लेन होता था, और कंपीट किससे कर रहे थे पता है? ब्रिटिश एयरवेज से, जिनके पास 300 प्लेन है, एक प्लेन और 300 प्लेन. फिर भी रिचर्ड ब्रैंसन ने इस सिचुएशन में भी गिव अप नहीं किया, एंड फाइनली उन्होंने वर्जिन एयरवेज को सक्सेसफुल बनाया. और आज वर्जिन के 100 और कंपनीज है. यहाँ ये बताने का, ये सारा स्टोरी शेयर करने का मुद्दा ये है कि रिचर्ड ब्रैंसन जब वर्जिन रिकॉर्डिंग से वर्जिन एयरवेज में पैसा लगा रहे थे, तो फियर ऑफ फेलियर उन्होंने किल नहीं किया होता तो वो नहीं कर पाते. दूसरा,
बहुत सारे लोगों ने उन्हें रोका, इंक्लूडिंग इस फैमिली मेंबर के क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज रिचर्ड ब्रैंसन फ्यूचर देख सकते थे। जरूरी नहीं है जो विजन आप देख सकते हो आपका फैमिली मेंबर, आपकी टीम, आपका पार्टनर, आपके साथ के लोग। सो से ट्रू टू योर विजन। सो लीडर, उन्होंने एफएफएफ को, फियर ऑफ फेलियर को किल किया। डर तो उन्हें भी लगा होगा, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया, करेज दिखाया, एंड ही वो वर्जिन एयरवेज को सुपर सक्सेसफुल बनाया, एंड टुडे ही हैज गॉट 100 कंपनीज। तो यहाँ पे अगर लेसन है हम लोग के लिए कि एफएफएफ आपको क्लियर कर, आपको एफएफएफ फियर ऑफ फेलियर जो है वो आपको किल करना होगा। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो फियर है आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ को रोकेगा। अच्छा, ओनर अगर डिसीजन नहीं लेता, ओनर अगर फियर में है ना, तो कंपनी का ग्रोथ ही नहीं होगा। मैं हूं या आप, कितने लोग अग्री करते हैं? If you're constantly in fear, not taking any new decision, your organization will never grow. Your organization, because आपके जो decisions है, see, मेरे mentor always कहते हैं, role model always कहते हैं, decision shapes destiny. One more time I will repeat, decision shapes destiny. So decision is the ultimate key to success. Now what decision means? Decision का मतलब होता है you cut off any other possibility and you do that thing. You pursue that thing, you follow that thing. So decision is the key to success. So leader also have a fear, they show the courage and they kill fear of failure. So understand your organization will not grow and to kill this. And understand तीसरी चीज सबसे important fear of failure में, understand कि एक बार जिस चीज से आप डर रहे हो ना, वो हो गया ना, तो आप एकदम खुल जाओगे। कितने अग्री करते हैं? मान लो आपने बोला इफ आई टेक दिस एक्शन, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं, जिससे आप डरते हो, अगर मान लो 1% के लिए वो घटना घट भी गई, तो पता है आप वहां से खुल जाओगे। क्योंकि जितने भी, अगर आप मल्टी बिलियनर देखोगे ना, मैं नहीं कहता, आप देख लेना। इनफैक्ट मेरे मेंटोर, रोल मॉडल कह सकता हूं, मेंटोर नहीं, रोल मॉडल टोनी रॉबिन्स भी एक टाइम बैंकक्रप्ट होने जा रहे थे और हिज ओन मिस्टेक, बैंकरप्सी। एक व्यक्ति दुनिया को सिखा रहे, एंड टुडे ही हैज गॉट 18 कंपनी, 3600 एम्प्लॉय, ही वाज अबाउट टू गेट बैंकक्रप्ट। अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द बिलियनर, उन्होंने अपना एक ऐसा बेट भी लगाया था कि वहां से बैंकक्रप्ट, और बैंकक्रप्ट से जाके भी वो लोग वापस आए हैं। अंडरस्टैंड, एक बार आपका डर खुल गया ना, टोनी सर ऑलवेज एक चीज कहते हैं कि जो थ्रेशोल्ड पे आते हो ना, थ्रेशोल्ड पे मतलब एक रॉक बॉटम पे हिट करते हो, उसके बाद आपकी लाइफ में ऊपर ही जाते हो। ये जो थ्रेशोल्ड, आप ये मान लो आप यहाँ पे हो, आप डरते हो कि एक्शन लेने गए, यहाँ की जाने गए, तो पर थ्रेशोल्ड पे जब आओगे ना, तो सारी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करेगी। सिंपली वो कहते हैं बर्न योर बोट्स, बर्न योर बोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब थ्रेशोल्ड पे आते हो ना, तो ही सारी चीजें आपकी लाइफ में होने लगेगी। थ्रेशोल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रेशोल्ड का मतलब जो चीजें आप डरते हैं कि अगर हमने एक्शन लेने गई, यहाँ नहीं हुए और यहाँ चले गए, तो लेकिन आप नीचे आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर 1% के लिए ऐसा होगा नहीं, 99% तो हमारा फियर है, और 1% के लिए ऐसा हो भी गया, तो दैट इज माई गारंटी। मैं आप सबको कह सकता हूँ कि थ्रेशोल्ड पे सारी क्रिएटिविटी अनलॉक होती है। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, थ्रेशोल्ड पे सारी क्रिएटिविटी अनलॉक होती है। नेसेसरी इज द मदर ऑफ नेसेसिटी, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वहां पे आप क्रिएटिविटी, बिकॉज आपके पास वहां पे सक्सीड के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। और दूसरा टाइम, आप जब एकदम सारी चीजें आप अपनी लाइफ में सह लेते हो ना, तो अब होने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। You know, most of the startup, why they grow very fast? Even Steve Jobs 20 की उम्र से निकले, 25 की उम्र में मल्टी मिलियनर बन गए थे और मल्टी मिलियनर बना दिए थे। बिल गेट्स 30 की उम्र में मल्टी मिलियनर बन गए थे, 20 की उम्र में शुरुआत की थी। ओयो अगर आप देखो, ओला देखो, फ्लिपकार्ट देखो, अगर आप देखोगे तो इन लोग में एक चीज कॉमन होती है, दे हैव नथिंग टू लूज। दे हैव नथिंग टू लूज। उनका एटीट्यूड रहता है, वो खो भी दे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। इन द सेम मैनर एक छोटा एंटरप्रेन्योर, एसएमई, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, एंटरप्राइज, दे हैव लॉट ऑफ फियर टू लूज। एंड व्हेन यू हैव अ फियर टू लूज, सारी एक्शंस कभी नहीं लेते। यू डू नॉट टेक एक्शन। नाउ हियर मैं यहाँ पे एक चीज मैं आप सब लोगों से बताना चाहूंगा, आई एम श्योर आप सब मेरे साथ अग्री करेंगे। जब मैं खास करके यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की बात करूंगा, एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल सब लोग इसमें आ गए। जब आपने अपने प्रोफेशन को या अपने करियर को, जब हम बिजनेस चालू करते हैं, तो हम सारे टाइप के रिस्क लेते हैं। डू यू अग्री? टेबल किसका लेके आते हैं, चेयर किसका आते हैं, बोले भिवंडी मिलने जाना है, खाना मिलने जाना है, अलीबाग जाना है, तो हम सारे एफर्ट में, डू वी पुट ऑल द एफर्ट्स एट द स्टार्ट ऑफ द करियर? जब भी हम अपने बिजनेस या करियर की स्टार्ट करते हैं, तो डू वी पुट ऑल द एफर्ट? होता है आपको मिलने कहीं दिल्ली आना पड़ेगा, तो ट्रेन में भी दिल्ली चले जाते हैं। हैव यू हैपेंड? स्टार्ट ऑफ योर बिजनेस, स्टार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, यू डू एनी एंड एवरीथिंग, सारी एक्शन लेते हैं हम। स्टार्ट योर बिजनेस, इवन आई हैव डन, आई एम श्योर में है ना, हम सारे रिस्क लेते हैं।
बट स्टॉप कहाँ हो जाता है पता है? व्हेन आई स्टडीड, जब एंटरप्रेन्योर के पास 2-5-10 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, 2-5 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, 10-20 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, कुछ लोग काम करने वाले थे, एक स्टेटस बन जाता है, एक आध घर ले लेते हैं, फिर एक आध फॉरेन वेकेशन मार के आते हैं, बच्चे को फॉरेन भेज देते हैं, थोड़ा स्टेटस बन जाता है ना, उसके बाद सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अब डर आ गया स्टेटस होने का। हाउ मेनी अग्री कि अब कंफर्ट क्या है? कंफर्ट लाइफस्टाइल का है, कंफर्ट फैमिली का है, कंफर्ट ये कंफर्ट आ जाता है कि अभी यहां से मैं नीचे उतरूंगा तो क्या होगा। पहले कुछ था ही नहीं तो कोई डर नहीं था, लेकिन ये जो सेकंड लेवल का है ना, वही आपको आगे नहीं लेके जा। देखो बहुत सारे लोग अग्री कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। और यहीं से अगर आप ब्रेक करते हो आपके फियर को, तो आप नेक्स्ट में जाते हो। और यहाँ पे अपने स्टेटस के फियर को, वो झूठा फियर, झूठा स्टेटस, कि लोग आपको सोसाइटी में देख रहे हैं कि अब मेरे को लोग ऐसे देखते हैं, अगर लॉस हो गया तो मेरे को ऐसे देखेंगे, मेरे को घर छोड़ना पड़ेगा, शायद को बोरीवली का लेविश 5 करोड़ का घर छोड़ के मेरे को 1 करोड़ के घर में रहने जाना पड़ेगा। ऐसे सब जो आपका झूठा स्टेटस, झूठा मतलब ये लोगों का जो डर है वही हमें एक्शन लेता है। अंडरस्टैंड? फियर व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट अस हम में बहुत होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है वी सिक फॉर अप्रूवल। हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है अप्रूवल सिक करने का, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, एंड दैट इज वो डोमिनेट कर लेता है हम लोगों के यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्टेटस बन जाता है ना, तो हम डर हो जाते हैं, बस यहाँ से गेम खत्म होती है। एक ऐसे में जहाँ स्टेटस को ऐसा कम पकड़ के बैठ जाता है कि बस अभी जो है उतना जमा के बैठू, थोड़ा थोड़ा सेफ खेलते रहो। अंडरस्टैंड, बीइंग सेफ इज अ रिस्क इन टुडेज मार्केट। राइट डाउन, being safe is risky and being in risk is safe. Understand? Because जितने safe रहोगे ना उतने risk में हो। That's it. That's because with the time and with the internet and with the disruption, कल मैंने disruption का topic लिया था। If you will not do it, other will do it. If you will not break your fear of failure, somebody else will do it. So it is very important कि आपके वो status को आप जाने दो। I'm not saying, कहने का मतलब इस पे मैं छठा जो मेरा सेशन रहेगा, आज दूसरा है, वो कंप्लीटली इसी पॉइंट पे रहेगा, तो इस पे मैं ज्यादा इलॉबरेट करूंगा। बट ऑल आई वांट यू टू से इज दैट जो स्टेटस है उसका अटैचमेंट ही या स्टेटस या आगे के एक्शंस नहीं लेने देता है। बट फ्रेंड, यहाँ से जो इस स्टेटस के डर को, जो लाइफस्टाइल के डर को जो व्यक्ति अगर किल कर पाया और एक्शन ले पाया, वही नेक्स्ट लेवल पे जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, उसका एक कारण भी देते हैं मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोगों और एसएमई एंटरप्रेन्योर, और इनफैक्ट मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में था ना, तो भी मैं क्वेश्चन लोगों को पूछा करता था। लोग कहते थे मेरी वाइफ है ना इसलिए आई डू नॉट वांट टू टेक रिस्क, मेरे बच्चे हैं दैट्स द रीजन नाउ आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, आई हैव अ फैमिली दैट इज द रीजन आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, आई हैव अ टीम दैट इज द रीजन आई डू नॉट वांट टू टेक अ रिस्क, माय फादर इज ओल्ड दैट इज द रीजन आई डू नॉट वांट टू टेक अ रिस्क। सिमिलरली एक एक आगे बढ़ने वाला इंसान क्या कहता है, माय वाइफ इज देयर, I want to give her a superb life. That's the reason I want to take a risk. I have children. That's the reason I want to take a risk, so I can give them a fabulous lifestyle and I can inspire them. I have my father and that's the reason I want to take a risk, so I can be son which they can be proud of. मैं ऐसा लड़का बनूं जिसपे वो प्राउड कर सके। I have my team. That's the reason मैं रिस्क लूंगा, क्योंकि मैं अपनी को करा सकूं। जो हारने वाले के बहाने होते हैं वही जीतने वाले के कारण होते हैं। हेलो, यू गॉट माई पॉइंट? तो बहुत सारी बार मैंने देखा है लोग एक्सक्यूज देते हैं, फैमिली का, टीम का, लोगों का, मम्मी का, पापा का, वाइफ का, इसका उसका, फलाने का, ढींकने का, बड़े भाई के, काका का, लड़की का, चाचा दादा, बहुत देते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड, जीतने वाले के वही कारण होते हैं जो हारने वाले के बहाने होते हैं। तो जो आप स्टेटस का बहाना देते हो ना अपने आप को, तो अगर आप जब वहां से लीप लोगे, डेफिनेटली यू कैन स्केल your team life, you can contribute more in society, you can give a more CSR, and at the same time you can be inspiration to all of us, to not only to your society, your community, but the country you live in। आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले we have seen Irfan Khan died. I cried on that day because he was a very versatile actor। बट उससे भी ज्यादा एक चीज है कि उन्होंने स्टैंड लिया था एक्टिंग के लिए, स्टैंड लिया था आगे बढ़ने के लिए, स्टैंड लिया था जीवन में कुछ करने के लिए। मैं ऑलवेज कहता हूं, इफ यू डू नॉट स्टैंड फॉर एनी वन थिंग, देन यू कैन फॉल फॉर एनीथिंग। अंडरस्टैंड? आपको किसी लाइफ में किसी ग्रोथ के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इरफान खान को हम इतना क्यों याद किया? आप देखेंगे ट्विटर, फेसबुक सब भर गया था उस दिन। अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो सारे के सारे ट्रिब्यूट्स थे, लाइन से ट्रिब्यूट्स थे। एंड इवन आई क्राइड, आई डिड नो व्हाई आई क्राइड। जबकि मैंने इरफान खान के इतने मूवीज, मैंने एक भी मूवी थिएटर में नहीं देखा होगा, सारे टीवी पे। जब मैं, अभी तो मैं 5 साल से टीवी नहीं देखा, लेकिन मैंने पहले देखता था, तो मैंने उनके मूवीज टीवी में देखे हैं। बट क्या पता व्हाट कनेक्शन और व्हाट ही हैड
स्टैंड लिया था एक्टिंग करियर के लिए, घर से भाग के आए थे और यहाँ पे आने के बाद स्टैंड लिया था। सो स्टैंड लिया था ना, इसीलिए हम सब लोगों ने याद किया। अंडरस्टैंड, आपको लाइफ में ग्रोथ के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ स्टैंड, एंड इफ यू डू नॉट टेक स्टैंड फॉर योर ग्रोथ, कहते हैं ना, आप स्टैंड नहीं लोगे किसी चीज के लिए तो यू कैन फॉल फॉर एनीथिंग। सो इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू किल द FFF. Now, the four characteristics of leaders. Leaders develop better leader than themselves. Absolutely. बहुत सारे SME, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, जो भी टॉप के लीडर्स हैं, जो भी टॉप के बिलियनर्स हैं, जो भी अपनी कंपनी को लेके जाते हैं 100 करोड़ के प्लस, 500 करोड़ के प्लस, 1000 करोड़ के प्लस, और उससे भी बढ़िया जो अपनी कंपनी को बेहतरीन बनाते हैं और कॉर्पोरेट बनाते हैं और अपनी कंपनी को एक नए मुकाम पे लेके जाते हैं, वो सारे लोग कंटिन्यूस लीडरशिप डेवलप करते हैं, लीडर्स डेवलप करते हैं। तो आपको अपनी कंपनी में ऐसे लोग लेने हैं जो कंट्रीब्यूटर एटीट्यूड वाले हो और उनको लीडर्स बनाना है। नॉर्मली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, जो लीडर्स होते हैं वो अपने नीचे वाले को ऊपर ही नहीं आने देते, कहते हैं कि ये सीख गया तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। बट रियलिटी डिफरेंट है, जो भी कंपनी ग्रो करती है वो लीडर्स बनाती है। अंडरस्टैंड, प्रोडक्ट सर्विस जो आपके पास है वो दूसरे का पास भी है। इट कैन, बट वंस यू क्रिएट अ लीडर और कल्चर, लीडरशिप कैन नेवर बी कॉपी। आपकी लीडरशिप कल्चर जो है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। सो दैट्स द रीजन देयर आर सो मेनी कंपनी ग्रोइंग। मैं सिर्फ कोका कोला की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप पे इतना ग्रो हुआ है। कोका कोला है क्या? खाली मीठा सोडा है। अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो खाली मीठा सोडा है। आई एम श्योर हम सबके पास उनसे कई गुना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। हाउ मेनी अग्री? हाउ मेनी अग्री? है क्या खाली एक मीठा सोडा है जो लोग कहते हैं अवॉइड करना। स्पेशली हमने सुना होगा कि अवॉइड करने के बारे में हम लोगों ने सुना है। एंड दैट ब्रांड्स मेड बिलियन, कोका कोला ने बिलियंस डॉलर कमाए सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप में। तो लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट कि आप लीडर्स डेवलप करें आपकी टीम में। ऐसे लोगों को लेके आना है आपके, और जो है उनको ग्रो कराने के लिए ट्रेनिंग, मेंटरिंग, कोचिंग करनी है। या तो आउटसाइड से जब आप लोगों को लाते हो तो ऐसे लोगों को चूज करना है जिनका कॉन्ट्रीब्यूटिंग एटीट्यूड है और कंटिन्यूस डेवलप लीडर करना है। बहुत सारे, कल ही मैंने इस सवाल का जवाब दिया था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमने लीडर्स लाए और अच्छे लोग लाए, अगर वो छोड़ के चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 3 साल के बाद छोड़ के जा रहे हैं, 2 साल के बाद छोड़ के जा रहे हैं, 5 साल के बाद छोड़ के जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो छोड़ के आपको जा रहे हैं तो आपको आगे छोड़ के जा रहे हैं। अगर लीडर्स बनाओगे तो अगर वो छोड़ के हैं, मैं आप सबकी बात को अग्री करता हूं, बट मेरी ये, मैं ये सब कहना चाहता हूं आपसे कि वो आपको आगे छोड़ के जाएंगे। तो फेल फॉरवर्ड, वो आपको आगे छोड़ के जाएंगे। एंड डेवलप लीडर्स, डेवलप लीडर्स, डेवलप लीडर्स, दिस इज द की टू सक्सेस। अच्छे लोग लाइए और उनको सिखाइए और उनमें वो स्किल दीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, एडमायर कीजिए और उनको लगातार प्रोत्साहित कीजिए अपनी कंपनी में लीडरशिप लेने के लिए। उनको लगातार मोटिवेट कीजिए, लगातार एम्पावर कीजिए, अपने नॉलेज को शेयर कीजिए अपने जूनियर से। जितने लीडर बनाएंगे उतना आपका ग्रोथ होगा। लोगों का मानना है अगर मैं लीडर्स तैयार करूंगा तो मेरी पोजीशन खत्म हो जाएगी। नहीं, आप लीडर्स तैयार करेंगे तो आप ऊपर वाले लेवल पे जाके बैठ सकते हो। हेलो, अगर आप लीडर्स डेवलप करोगे तो आपकी पोजीशन खत्म नहीं होगी, आप अगले लेवल पे चले जाते हो। यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। आज आप चीजों को संभाल रहे हो, कल सिर्फ आप लोगों को मैनेज करोगे, परसों लोग लोगों को मैनेज करेंगे, आप दूसरा काम करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हेन यू आर डेवलपिंग अ लीडर, आपका पोजीशन, आपका जो लेवल है वो खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं अगर मैंने किसी अच्छे व्यक्ति को लाया, कराया, तो क्या अगर वो 3 साल के बाद मेरा कॉम्पिटिटर बन गया तो? माय डियर फ्रेंड, अगर वो वाकई में लीडर है और वाकई में सुपर काम करता है तो 3 साल में आपकी कंपनी को आगे बढ़ा के लेके जाएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप अ बेटर लीडर देन देमसेल्फ। लोगों को लाओ और आप में कंटिन्यूस लीडरशिप बनाने का कल्चर होना चाहिए, बिकॉज लीडर्स यू ऑलवेज करते रहते हैं। योर प्राइमरी ड्यूटी इन योर बिजनेस टू डेवलप लीडर। हो सकता है 5 की टीम है आपकी, 4 की टीम है, हो सकता है 30 प्लस लोग हो, 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, कितनी भी आपकी टीम है, आपका प्राइमरी फोकस रहना चाहिए टू डेवलप द लीडर। अभी लीडरशिप मतलब क्या? हाउ यू विल डेवलप द लीडरशिप। मैं एक पॉइंट यहाँ पे इज दैट यू नीड टू शेयर योर विजन विथ योर टीम मेंबर। आपके जो विजन है कंपनी का, वो लीडर आपकी टीम में शेयर करना है। लीडर्स मतलब क्या? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ओनरशिप ले, कंपनी को खुद का समझ के काम करे, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करे, कंपनी को अपना समझ के काम करे, कंपनी के लिए कभी भी रेडी रहे। लीडर्स का मतलब ये होता है आपको बोलने की जरूरत नहीं है। लीडर टाइप के एम्प्लॉय ऑलवेज कहेंगे इट इज डन। दे विल नॉट आस्क व्हाट टू डू, दे विल ऑलवेज से इट इज डन। Said is better, well done is better than well said. They will do it and they will report. So it is absolutely important
इंपॉर्टेंट, और उसके लिए ऐसे लोगों को आपको लाना पड़ेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, हम घोड़े का परफॉर्मेंस गधे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको वैसे लोगों को लाना होगा अगर आपकी टीम में नहीं है तो। अगर आपकी टीम पोटेंशियल दिखता है तो 100% उनको ग्रो कराइए, और आपकी टीम में नहीं दिखता है तो मेक श्योर आप बाहर से ऐसे टैलेंट को लेके आइए, कंट्रीब्यूटर हो जो लीडर की सीट रखता हो। अंडरस्टैंड, कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी बनना नहीं चाहेंगे, जो कभी पोजीशन पे हाइक करना नहीं चाहते, जो ग्रो करना नहीं चाहते, वो आपके काम के भी नहीं है। जो ग्रो नहीं करेंगे वो आपको ग्रो करवा भी नहीं सकेंगे। सो डू नॉट चूज अ सेटिस्फाइड पीपल, चूज पीपल हु आर एंग्री। एंग्री, जिनको अपनी खुद की परफॉर्मेंस से मजा नहीं आता है। दे आर ऑलवेज एंग्री, दे आर ऑलवेज एंग्री टू गिव अ बेटर परफॉर्मेंस, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। लीडर मतलब जो आपकी कंपनी में लोग लाते हैं, मैं कोर टीम की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया टॉपिक, सो आपको मैं अलग नॉलेज भी दे रहा हूँ इसमें। तो आपकी कोर टीम में आपसे नीचे 2-3 लोग हैं ना, वो सेटिस्फाइड नीचे, दे मस्ट बी हंग्री एंड दे मस्ट बी एंग्री, हंग्री फॉर द ग्रोथ एंड एंग्री विद देमसेल्फ कि मुझे और परफॉर्मेंस देना है, और बेटर परफॉर्म करना 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 है। वेरी सिंपल। आपके नीचे कोर टीम के बारे में भी मैंने नॉलेज दे दिया, हाउएवर ये मेरा टॉपिक नहीं था, पर मेरे दिमाग में आया, इंस्टेंट पॉइंट मुझे सूझा, इसलिए मैंने बता दिया कि आपसे नीचे जो 2-3 लोग हैं, जैसे मैं कह रहा था ना ऑटो पायलट मोड पे लेके जाने का, तो यहाँ पे हंग्री और एंग्री लोगों की जरूरत है, जो कंटिन्यूसली, अगर वो 200 का सेल टीम ने किया तो दे आर हंग्री एंड एंग्री आल्सो, क्या 400 800 दे विल कॉन्स्टेंटली पुश देमसेल्फ एंड दे विल कॉन्स्टेंटली पुश पीपल। तो लीडरशिप पोजीशन पे ऐसे लोगों को नहीं रखना है जो भगवान के आदमी, हाँ ठीक है चलता है, हो रहा है, यस चलता है, हो रहा है, चलेगा, होएगा, यस 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 यस, हमारा टॉपिक है, बट मैं आप सबको से शेयरिंग की। आई होप यू एंजॉयड दिस पॉइंट एवरीबॉडी, बिकॉज सी पीपल डू नॉट नो कोर टीम कैसी होनी चाहिए। लोगों को लगता है कोर टीम मतलब लॉयल लोग, यस थैंक यू जयश्री। लोगों को लगता है कोर टीम मतलब कोर टीम मतलब लॉयल, नो नो, दे आर हंग्री, दे आर एंग्री, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक कोर टीम। Okay, then essence of a great leadership is influence, not authority. Absolutely influence के बारे में मैं आपसे शेयरिंग कर चुका हूं। तो हमने अब तक 4 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा। Let's move to 5th कैरेक्टरिस्टिक, leader face the mess. Absolutely. अब ये क्या है, leader face the mess? लीडर्स जो होते हैं वो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, दे डोंट हाइड बिहाइंड द डेस्क। वन मोर टाइम आई विल से, डोंट हाइड बिहाइंड द डेस्क। बहुत सारी बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि ओनर कहते हैं बोल दो मैं हूं नहीं ऑफिस में, ऐसा मैंने खुद देखा है। क्योंकि मैं तो जब मैं अपने करियर की शुरुआत की मैंने, तो आई यूज्ड टू गो टू पीपल्स ऑफिस टू ट्रेन देम। कुछ यहाँ पे उनको पता है कि मेरा ये मॉडल था, बहुत समय पहले की, 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सो दे ऑलवेज प्रेशर अवॉइड करते हैं, ओनर्स को भी मैंने देखा है, दे आर अवॉइडिंग द प्रेशर एंड डिफिकल्ट सिचुएशन एंड दे आर सेइंग बोल के मैं मतलब अगर चीजें खराब जाए, फेल हो जाते हो, चीजें एक्सपेक्टेडली नहीं होती, तो लीडर ऑलवेज फेस करता है। लीडर भागता नहीं है, लीडर सरेंडर नहीं करता, अभी मैं क्या करूं, अब इसमें मैं क्या करूं, ये लीडर का जॉब नहीं, अभी इसमें मैं क्या करूं, ये लैंग्वेज लीडर का नहीं है। लीडर को मैस मतलब चीजें खराब हो जाती है, फेल हो जाता है, टीम के लोग छोड़ के चले गए, क्लाइंट छोड़ के चला गया, आपके टीम का लड़का आपके क्लाइंट लेके भाग गया, बहुत सारे बिजनेस में चैलेंजेस आ सकते हैं, किसी ने गफला कर दिया, वो हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत सारे लफड़े झगड़े कंपनी में होते हैं। डेफिनेटली इन टीम बिल्डिंग में लिटिल बिट शेयर करूंगा प्रज्ञेश शाह जी, डेफिनेटली थोड़ा बहुत उसमें, जब टीम बिल्डिंग में, एक्चुअली टीम बिल्डिंग का भी पॉइंट नहीं है, लेकिन सिंस मैंने कोर टीम की बात किया, आई डेफिनेटली वांट टू गिव यू एनलाइटमेंट कैसे उसे बनाया जाता है। आई विल डेफिनेटली crucial 10 minutes of knowledge on a core team. Okay, I will definitely share. वैसे तो मैंने बता ही दिया कि ऐसे लोग होने चाहिए, उससे थोड़ा और इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा on the 5th day when I share a team building. Okay, so leader face the mess. लीडर जो होता है वो मैस को ऑलवेज फेस करते हैं, वो लोग सिचुएशन से भागते नहीं है, डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, टू ऑल एसएमई, टू ऑल एंटरप्राइजेस, टू ऑल एंटरप्रेन्योर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज जब भी कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, डोंट रन अवे, क्योंकि आप रन अवे करेंगे तो आपकी टीम को कभी लीडर नहीं मानेगी। यू ऑलवेज नीड टू फेस द सिचुएशन। कहते हैं ना, लीडर का काम होता है टफ कॉल्स लेना, लीडर का काम होता है टफ डिसीजन लेना, और मैं ऑलवेज कहता हूं कि लीडरशिप इज सीन, इस पॉइंट को चाहिए तो लिख लो, आज का पूरे सेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो सारी चीज इंपॉर्टेंट थी,
बट ये पॉइंट लिख लो और अपने घर में कहीं से चिपका दो। लीडरशिप इज ऑलवेज सीन इन क्राइसिस। How you perform in crisis, that shows that what kind of leader you are. How you perform in crisis. In good time, it is very easy to laugh. It is very easy to be calm. But when time demands, situation demands, जब situation सही नहीं है, not everything is going according your thought, then how you behave. और तभी भी आप अगर पॉजिटिव रहते हैं और अपनी टीम को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं और राइट एक्शन लेते हैं, तो आप एक लीडर बहुत निखर के आते हैं। लीडर्स एंड ऑलवेज टफ टाइम में निखर के आते हैं। अगर आपको देखना है, दो होते हैं, लेकिन जो लीडर्स होते हैं ना, वो टफ टाइम पे निखर के आते हैं। और टफ टाइम पे कभी निखरते जब वो चीजों को फेस करते हैं। तो आपको रन अवे नहीं करना है, फेस करना है। और अंडरस्टैंड, जब आप फेस करोगे ना, तो आपके अंदर का विल पावर इंक्रीज जाएगा, आपकी अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपकी अपने लिए सेल्फ इमेज बढ़ जाएगी, आप अपने आप को ऊंचा देख पाओगे। मैं ऑलवेज कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। The more respect you give it to yourself, the more respect you get from the world. Number one. And how you develop respect for yourself? By doing the right thing, by not doing the easy thing. How do you develop the respect for yourself? Doing difficult tasks, by facing the difficult situation, and by facing the challenges. Develop a self-image, self-respect, and lot of love for yourself. मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ कि जितने आप रखोगे और डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करोगे, चैलेंज को फेस करोगे, और तभी भी होपफुल रहोगे और राइट एक्शन लोगे, राइट डिसीजन लोगे। राइट डिसीजन टफ डिसीजन भी हो सकते हैं, तभी आप एज अ लीडर ग्रो करोगे। आपका आपके लिए प्यार बढ़ेगा, आपकी टीम का आपके लिए सम्मान बढ़ेगा, आपकी सेल्फ इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट इंप्रूव होगी। तो लीडर फेस द मेस, दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। And last but not least, absolutely face all kind of situation and he still remain positive. Leaders renovate and innovate. Leaders always renovate करते रहते, कुछ ना कुछ नया करते रहते। They are not afraid of future. Fear of unknown उन्हें नहीं रहता। डर तो सबको रहता है, लेकिन एक्शन लेके आप किल करते हो। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर लीडर्स को डर नहीं लगता क्या? आप भी लीडर है क्या? यस, आप भी लीडर है। आपको लीडरशिप की स्किल्स है, उसको इम्प्रूव करना है। क्या लीडर्स को डर नहीं लगता? ऐसे बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं। यस, लीडर को भी डर लगता है, लेकिन वो डर के बावजूद एक्शन लेता है। कहते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं है कि नॉट हैविंग अ फियर, करेज का मतलब है फाइटिंग इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ फियर। Okay, so leader renovate and innovate. Leader always constant renovation और innovation करते रहते, लगातार नई नई चीजें लाते रहते, लगातार नई नई चीजें करते रहते। स्टीव जॉब की मैं बात करूंगा। स्टीव जॉब ने कभी भी मार्केट में कंपटीशन फेस नहीं की, क्योंकि जब भी वो कोई प्रोडक्ट लेके आते थे, तब क्या होता था, तब बहुत सारे लोग, पहले तो कोई व्यक्ति प्रोडक्ट लाता है, उसके बाद उसे कॉपी करते हैं। लेकिन स्टीव जॉब बड़े बड़े स्मार्ट व्यक्ति थे। जब भी लोग कॉपी करने जाते थे ना, उतने में तो वो वापस इनोवेशन जोन में आ जाते थे, कुछ नया लेके आते थे। स्टीव जॉब जब तक ये, तब तक उन्होंने कंपटीशन को फेस नहीं किया आइडियली। तभी आज एप्पल दुनिया का सबसे, अगर फोन कंपनी में कैश रिच कंपनी है एप्पल, कैश रिच कंपनी वर्ल्ड में जितनी भी, एप्पल इज अ कैश रिच कंपनी क्लोज टू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टीव जॉब जो थे कंटिन्यूस इनोवेशन जोन में रहते थे, कंटिन्यूस। दूसरा, अभी इनोवेट नहीं करते और लीडर रिनोवेट भी करते, मतलब चीजों को नई नई चीजों, नए नए तरीके से, नए नए पैटर्न से करते रहना है। अच्छा, लीडर है ना, वो चीजें सही चले ना तो उनको मजा नहीं आता। कह दूं तो एक लाइन में उनको कुछ ना कुछ नया करना अच्छा लगता है, उनको कुछ नया करना पसंद होता है, उनको स्टेटस को ब्रेक होता है। वो स्थिर चीजों को उनको मजा नहीं आता, और स्थिर होना तो लीडर बोर हो जाते हैं। तो रिनोवेट करते रहते ताकि उनकी कंपनी और उनके ऑर्गेनाइजेशन का कांस्टेंट ग्रोथ होता रहे। देखो डियर फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ बिजनेस ओनर्स 2-3 डिसीजन लेते और पूरे साल भर वही पैटर्न चलती रहती है, बट लीडर कंटिन्यूस रिनोवेट करते हैं, या तो चीजें नई तरीके से करते हैं या तो कंप्लीटली नहीं करते हैं। सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटिन्यूस रिनोवेशन या इनोवेशन होना चाहिए। फियर ऑफ अननोन होगा 100%, फियर ऑफ अननोन आपको आएगा कि करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। अंडरस्टैंड, राइट, कॉस्ट होना ज्यादा जरूरी है। अमेजॉन के ओनर जेफ बेजोस का कहना है कि कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है,
लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर के सामने होने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे आइडिया कैपिटलाइज नहीं होते क्योंकि हम परफेक्शन के ट्रैप में आ जाते हैं। हाउ मेनी अग्री? आई विल डू दैट परफेक्ट। अच्छा, हाउ मेनी अग्री विथ मी? देयर आर सो मेनी थिंग वी आर नॉट एबल टू डू बिकॉज वी आर इन ट्रैप ऑफ परफेक्शन। परफेक्ट माल उतारेंगे, परफेक्ट, इसलिए आइडिया जो है परफेक्शन में कभी नहीं आता। इसलिए कभी परफेक्शन का ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जो आपको कभी भी एक्शन लेने नहीं देगा। मैं परफेक्ट 1 घंटा जिम जाऊंगा, मैं परफेक्ट नया प्रोडक्ट उतारूंगा, मैं परफेक्ट नया सर्विस उतारूंगा, मैं परफेक्ट नया ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगा, मैं परफेक्ट करूंगा। अंडरस्टैंड, जो चीजें आपको परफेक्ट करनी है ना वो तो होगी ही नहीं। पहले याद रखो 50% का रूल अपनाने का, कि पहले मैं करूंगा, एक्सेप्ट करो चीजें बरोबर नहीं होने वाली, फिर और करोगे बरोबर होगी, फिर और करोगे बरोबर होगी, फिर और करोगे बरोबर होगी, एक दिन बरोबर होने लगेगी। जो भी चीज में आप परफेक्शन सोच रहे हैं कि एकदम परफेक्ट होने के बाद करूंगा, वो होने वाली ही नहीं है। सो प्लीज रिमूव द, अच्छा किसी ने लिखा परफेक्ट सर, भाविन जी ने, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। देयर इज नो वर्ड कॉल अ परफेक्शन, देयर इज ऑलवेज वर्ड कॉल इंप्रूवमेंट। सो अंडरस्टैंड, ये परफेक्शन के ट्रैप को हटाओ। यस, प्रोडक्ट आपका कस्टमर के सामने होना चाहिए, अंदर अंदर गाते नहीं रहे, अब मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसे किया तो अपन पूरा मुंबई में नाम कर सकते हैं। कि करेंगे तो नहीं, कर डालो, कर डालो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? एटलीस्ट नहीं करने वालों को तो कोई नॉलेज नहीं मिलता है, करने वाले नहीं जाते। कहते हैं ना कि सक्सेस इज नथिंग बट अ बंच ऑफ फेलियर। बहुत सारा फेलियर और फीडबैक मिलेगा तो ही आप कर पाओगे। अंडरस्टैंड, अगर आपको ट्रिवली मैं कहता हूँ, इफ यू वांट टू सक्सीड, आपको फेलियर से प्यार बढ़ा देना चाहिए। जैक मा का भी कहना है, जैक मा का भी कहना है कि आई फेल लॉट, embarrassed, trust me, embarrass the failure, because unless until आप फेलियर को फेलियर देखेंगे ना, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। So leaders always renovate and innovate. They constantly do new things। और कोई भी आइडिया, आज से मैं आप सबको बोलता हूँ, this is my homework, what are the thing you want to perfect, आपको करनी है, लेकिन आपने बोला था परफेक्ट स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ ये सारी चीजें आज आप लिखेंगे और उसमें से एक चीज आने वाले 10 दिन में लागू करेंगे या अप्लाई करेंगे। जितनी भी चीज आपने सोची है परफेक्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब वो हुई नहीं। अग्री? जितनी भी चीजें आप एकदम परफेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो ना, वो हुई नहीं है, वो परफेक्ट वाली चीजें होती नहीं है। तो उनको लिखना है और उसमें से एक ऐसी चीज, वन थिंग विच यू विल अप्लाई इन नेक्स्ट 10 days स्टार्टेड, नेक्स्ट 10 days स्टार्टेड। अभी मुझे भी जूम पे आना था, तो कोई परफेक्ट सेशन की होता नहीं, डायरेक्ट चालू करो, सिंपल चालू करो। हाँ, चालू करने का, एक्शन लेने का कुछ नहीं, चालू करो, चालू करो, चालू करो, चालू करो, चालू करो। से मोर यस देन नो। टोनी रॉबिन्स ऑलवेज कहते हैं, नॉट we want to take perfect decision, so we take no decision, and that's also a decision. And when you take no decision, you remain where you are. So with this, I would love to give one more quote, and with this I want to leave that leader have compassion. Yes, leader have compassion, जो है वो compassionate होते हैं। It's one more characteristic, leader have a compassion। leader जो होते हैं compassionate होते हैं। they are driven by the cause, उनको लोगों के लिए चिंता होती है, उनको लोगों की फिक्र होती है, उनकी टीम की फिक्र होती है, सोसाइटी की चिंता करते हैं, सोसाइटी की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता करते हैं, टीम की चिंता करते हैं, कंट्री की चिंता करते हैं। लीडर जो है ना, कंपैशन से ज्यादा ऑपरेट करता है। अंडरस्टैंड, कंपैशन विल गिव यू मोर पावर, कंपैशन, कनेक्शन टू पीपल विल गिव यू मोर पावर। सो बी कंपैशनेट। लीडर्स ऑलवेज कंपैशनेट होते हैं, लीडर ऑलवेज कंपैशनेट होता है, लीडर में वो कंपैशन होता है, एंड लीडर मोर पैशनेट। सो कंपैशन कहां से दिखानी शुरू करनी है? फर्स्ट टू योर फैमिली मेंबर एंड टू योर टीम। अपनी टीम को कंपैशन दिखाओ, व्हाट दे वांट, उनकी लाइकिंग क्या है, क्या चाहते हैं जीवन में, कहां जाना है। कंपैशन पहले टीम के साथ होना चाहिए, तो ही आप आउटसाइडर के साथ कंपैशन रख पाओगे। फैमिली में आपको कंपैशन होना चाहिए, तो ही आप कस्टमर के साथ कंपैशन पाओगे। अंडरस्टैंड? सो इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, लीडर कंपैशनेट होते हैं। और मैं कहता हूं जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर हुए हैं, because of the compassion, they had the compassion for other people। तो लीडर के पास बहुत सारा कंपैशन होता है। And I would love to leave you with this quote, leader become great not because of that power but because of their ability to empower others। yes, लीडर इसलिए ग्रेट नहीं होते, पावर होता है उनके पास इसके लिए। लीडर ग्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। आप जितना एम्पावर करोगे, आप जितना एम्पावर करोगे उतने ग्रेट बनोगे। आप जितना बॉस ही करोगे उतने आप कभी लीडर नहीं बनोगे। देन यू आर नॉट अ लीडर, यू आर अ बॉस। बट द मोर यू एम्पावर पीपल टू ब्रेक एंड स्ट्रेच देयर लिमिट, more get them to spirit,
then more you get them to spirit, and more you inspire your people, the more you empower your team, the more you empower your customer, the more you empower your family, the more you empower your stakeholder, the more you empower your investor, the more you empower everybody, then you become a leader when you're empowering everybody. Okay. So with this, friends, I would love to end this wonderful leadership session. I hope you have got the great idea. I know the time is pressing, only 1 hour, and what I can share about my leadership knowledge, but in size, I've shared with you what I can share in clips. मैंने जो भी share कर सकता था, I've shared with you. So apply. I still apply. I still do it. Thank you, ma'am. I still do it at this stage. मैं खुद भी ये सारी चीजें करता हूँ. I definitely also what I'm sharing you right now, because conviction तभी आता है जब आप करते हैं. I don't think about it. मतलब मैं सोचता नहीं कि आगे. Yes, definitely I think what next will happen, but it's necessary for you to take courageous action. Okay, thank you so much all of you. Now, thank you so much. पहले मैं सब लोगों का शुक्रगुजार करना चाहूँगा. Yes, I want to thank everyone. Yes, Mukund sir, it was wonderful, yes. Excellent session. See, people take it as a myth. Those of whom when we have circulated, you know, so they think leadership will मतलब कहीं जाके, you know, कुछ campaign करना है या you know something. It's so in perception. आज किसी ने पढ़ा भी होगा, समझो हमने ये ब्रोचर भेजा किसी को, so they have a mindset कि when we write the word leadership मतलब कहीं जाके आपको lead करना है. It may be in your life or it is in your business or a profession. वो लोगों को समझ आना चाहिए. So I think you have done a wonderful, you know, the analysis. Okay, which are the inherent quality as a person when you lead someone. So basically, जितना आज का एक टर्न उन्होंने बोला है कि leaders are prove themselves as a great leader in crisis. What we have to write somewhere on our wall. And, absolutely, leadership is always in crisis. And the first slide also is very important in your life. It is very your life will become hard if you stop believing. Stop believing in that there has to be a hope. Kale kai saru thawanu che. Tomorrow is going to come, and each darkness will go away. There is a one small candle can light the whole environment. So can I be that light? That is what we have to think within ourselves. कि हम जितना कर सकते हैं लोगों के लिए. And I must appreciate कि Mukund sir is always giving workshop with the charges, but for us he's coming at least के see anybody sharing their knowledge is something what they have you know learned through this thing. Everything cannot be weighted, but he's ready to share ना. चलो આપણે કે मैं कीधु capsules આપશું. What I'm telling is the capsule. There is a big course and there is a long process to change yourself, you know. And one more again, what I like in the whole this episode is that destiny. Your decision will decide your destiny, and that is the word. Absolutely. Yeah, so absolutely. Anyone has a question, sir? You have told up 5 minutes. We will give them questions. 1 minute, Vandana ma'am. Yes, 1 minute. Give me a chance to thank each person who is thanking me. So I think it's my duty to thank everybody. Let us start with you, Vandana ma'am. Okay. So thank you so much, Shrikant ji. I'll take the name. And then Sagufta Abdul Aziz ji, thank you. Hiral Mehta ma'am for attending, thank you. Pragnesh Shah ji, thank you. Chirag Vajani ji, thank you. फिर कोई तो नंबर आ रहा है, good one, thank you. भावेश पुरोहित जी, thank you. अश्विन जोशी जी, राकेश, thank you for attending and thank you for the compliment, thank you. हितेश पंड्या जी, आपने लिखा है thanks a lot, I say welcome and thank you for attending. भाविन मेहता जी, great session, thank you. Payal Davda, thank you. Payal ma'am, thank you so much and most welcome. Krishna Lal Sharma, thank you for wonderful sharing. Thank you so much. Most welcome and thank you to you to attending. Daman Purohit ji once again, Kailash ji and Rakesh Agarwal ji and so and so. I'm sure मैं किसी का नाम नहीं भूल रहा हूँ. So Kalpana ma'am, thank you. Surat Davda ji, thank you, and thank you to all of you. Yes, now I am open for question. Today we have crossed once upon a time 50 total per participant. So that is also an achievement. People have listened to my request. Yesterday I said, when I am getting some knowledge, why don't I ask my colleague or peers to also get inspired? Because हम कुछ बोलेंगे और teacher या guru कुछ बोलते हैं तो उसकी impact separate होती है. So my humble request, those of you attended today, shall also circulate among your group. So more participants, that is our vision. We change the lives of more and more people. Because Mukund sir has taken pain to design total 7-day course.
So हर दिन का कुछ एक एक पॉइंट भी हमारी लाइफ में आया. So consistently small efforts done every day can reach to higher result. Absolutely, absolutely. So anyone has a question? Or shall we meet tomorrow at 8 o'clock sharp? प्रेजेंटेशन आई विल बी शेयरिंग. आज का प्रेजेंटेशन मैंने ऐप में ही शेयर किया था. आपको चाहिए तो हम ईमेल कर देंगे आपके सबके ईमेल आईडी पे, दोज हु हैव रजिस्टर्ड. Yes, yes. Thank you. So then Yes, good night so, and yes, thank have you a so good much. dreams. Yes, Dreams. thank you, वो Vandana बोलना ma'am, dare once again. dare to dream. अच्छा, हाँ, बोलो बोलो. I want to say 21 nice book, 21 Laws of Leadership by John Maxwell. It's a very nice book. Yes, you had told you will be sharing some books name. Yeah, 21 Laws of Leadership. You all can start with it. 21 Laws of Leadership. Very nice book by John Maxwell. You can share in the group. It's a very nice book. 21? Please write in chat. 21? 21 laws of leadership. Laws जैसे कहते हैं कानून, वैसे leadership के कानून है. Yes, 21 laws of leadership by John Maxwell. John Maxwell. John Maxwell. It is a very fantastic book on leadership. I might have read for almost 10 times. Yes, John Maxwell. I might have read for 10 times. So it's a nice book to read, all of you. Okay. Great. So dinner is waiting for Okay. each one of us. Yes. Yes. After Thank you so much, having, Vandana ma'am. after Thank you so having much, food everybody. for thought, let's have a dinner. Absolutely. Thank you so much, Vandana Good ma'am. night, Thank you so much, everyone. everybody. Bye-bye. Bye-bye. Good night.